हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, उसका आगे टॉपिक कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ रेम्यूनरेशन का, जिसमें सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो गाइज, रेम्यूनरेशन इज अलाउड टू द पार्टनर्स फॉर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म. It is allowed only if the partnership deed provides for it. Stating it differently, if the partnership deed doesn't exist or if it exists but it doesn't provide for allowing salary and commission, it is not allowed. ये allowed नहीं की जाती। उसके बाद हम नेचर की बात करेंगे। सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन एंड नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिकॉज it is allowed if partnership deed allows it and also if the firm earns profit during the year. ठीक है जी। And so salary payable to each partner is normally stated as an account, but commission payable to a partner is stated as percentage of profit, which may be allowed to the partner either as a percentage of net profit or distributable प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। और दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, एनपी इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है, IOC इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. It is also calculated at the agreed rate with the reference to the time capital has been used in the business. Thus, interest on capital is allowed on the opening balance of the partner's capital account, or if further capital is not invested or capital is not withdrawn. तो additional capital क्या होती है, अगर additional capital is introduced during the year, interest is allowed, or if it from the date additional capital is introduced till the end of the accounting year. Withdrawal of capital. If capital is withdrawn by the partners during the year, interest is allowed on capital. Interest is not allowed on the amount withdrawn from the date of withdrawal of capital till the end of the accounting year. मतलब कि जितना पैसा आपने विड्रॉल कर लिया है कैपिटल में से, उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। तो आगे ये जो टेबल बनाया हुआ है वो है प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डजंट प्रोवाइड फॉर IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ये तो आपको पता ही है। ठीक है जी। उसके बाद व्हेन द पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital but it is silent on whether interest is a charge or appropriation, तो उस केस के आगे 3 प्रोविजंस बन जाएंगी। वो पहला क्या है कि इंटरेस्ट ऑन IOC इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये तो एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। IOC इज अलाउड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस। पहली क्या, सिचुएशन 1 का लॉस, IOC इज नॉट अलाउड। सिचुएशन 2, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू IOC, IOC इज अलाउड एट एग्रीड रेट। और उसके बाद सिचुएशन 3 क्या है, प्रॉफिट इज लेस देन IOC। तो इस केस में इज गिवन टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतने लेवल तक ही दिया जाएगा IOC। और इफ when the deed provides for IOC as a charge, that is, it is to be allowed whether there are profit or losses. IOC is allowed whether the firm has earned profit or loss or incurred loss. ठीक है, मतलब कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको IOC देना ही देना है जब वो चार्ज होता है। ठीक है जी। ओके, अब हम आगे बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल when IOC is an appropriation and profit available for appropriation is inadequate. तो गाइज इसमें कैसे करते हैं हम, profit of the firm for the year may be less than the amount of interest on capitals allowable to the partners for the year
एंड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इज एन एप्रोप्रिएशन. इन दिस सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल of a partner is calculated and the profit is distributed among the partners in the rate of IOC. In case along with the IOC, appropriation is to be made for salary, commission, etc. to partners. Total amount of appropriations for each partner is determined and amount of profit is distributed among the partners in the ratio of appropriations to be made to the each partner. और आगे ओपनिंग कैपिटल कैसे डिटरमिन की जाएगी. आईओसी फॉर द ईयर इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इफ ए पार्टनर हैज नीदर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल नॉट विड्रॉन इट ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंटिंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर. इन केस opening capital is not given and is to be determined on to calculate IOC, it determined by adding the items which have already been deducted and by deducting the items which have already been added to the capital. For example, एडिशनल कैपिटल IOC प्रॉफिट क्रेडिटेड. तो ये रिवर्स करना है. तो इसको हम समझने के लिए नीचे वाले फॉर्मेट्स को देखते हैं. इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. अगर तो कैपिटल फिक्स है तो उस फिक्स कैपिटल में क्या करेंगे, हम जो कैपिटल एट द एंड है उसमें हम ऐड क्या कर देंगे, विड्रॉल को हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर लेंगे. और लेस को क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर करके वो क्या बन जाएगा, हमारा कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बन जाएगा. और उसके बाद व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल एट एंड ऑफ द ईयर. तो इसमें हम क्या करेंगे गाइस, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एड बैक कर लेंगे जिसको हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोलते हैं. ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड शेयर ऑफ लॉस इफ एनी विल बी एडेड बैक. एंड आफ्टर दैट हम उसमें से लेस क्या करेंगे, जो भी चीजें कैपिटल में ऐड करी थी वो था पार्टनर की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट. और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ठीक है गाइस. तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक. ओके जी, विशिंग यू गुड लक.